this is Fibonacci heap is also a collection of heap ordered trees. This is similar like as a binomial heap. This is also a collection of heap ordered tree. Collection of heap ordered trees, and the trees in Fibonacci heap are not constrained to be a binomial. Means the trees in Fibonacci heap are not constrained to be this property differ from Fibonacci heap from binomial heap. Means this is collection of heap order tree. Binomial heap is also collection of tree heap order tree, but each tree satisfy the property of binomial tree. The trees in a Fibonacci heap are not constrained to be a binomial tree, but in case of binomial heap, all the trees are binomial trees. Here the traits in case of Fibonacci heap are not constrained to be a binomial. Then means this means in case of binomial heaps, the trees are ordered. In case of binomial heap, the trees are ordered, but in Fibonacci heap, trees are rooted but not but सर कोई ज्वाइन होना चाहता है। okay, okay, okay. Unordered. Here simply in case of binomial heap, the trees are ordered. Like as वहां पे क्या था, binomial heap is a collection of binomial trees, and binomial trees are ordered. Binomial trees means bk is constructed from 2 bk minus 1. Similarly, bk minus 1 is constructed from 2 bk minus 2, and up to b1 is constructed from 2 vg rows, and 1 is the leftmost child of others. Simply this is the difference. This is collection of heap order. जितनी भी trees होंगी आपकी Fibonacci heap में, that are heap ordered. Means each tree satisfy the condition of heap. Means in case of binomial heap, the trees are ordered, but in case of Fibonacci heap, the trees are rooted but unordered. The trees in Fibonacci heap are not constrained to be a binomial tree. Here let us consider example. Suppose this is a tree. This is the tree. This is 24. This is a one root. This is another root, that is 8. That is, this is 3, 18, 52, 38, then 39, this is 21,
this is 24, this is 27, 45, and this is 35. So this is means the dotted line represents the root of the tree. Every tree is rooted but not ordered. These are the roots. This is 24. This satisfy the property of binomial heap because it consists only a root, none of the childs. This means this is a lesser value. We assume that this one is a lesser value. This is also a root, only single node. This consisting of several nodes. तो इन केस ऑफ यदि ये बाइनोमियल हीप, देखिए ये तो बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी है, ये भी बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही इसमें जाएंगे दिस नॉट सेटिस्फाई द बाइनोमियल हीप. क्यों? क्योंकि यदि ये बाइनोमियल हीप कब होता है, दिस इज मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ट्री, तो दिस इज 3 + 1 + 2 दैट इज 7. तो 7 नोड का कोई भी बाइनोमियल ट्री नहीं होगा. से बाइनोमियल ट्री इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस इज नॉट अ, जो यदि केस आप बाइनोमियल हीप की बात करेंगे तो बाइनोमियल हीप में जो भी ट्री होगा दैट इज अ बाइनोमियल ट्री, बट दिस इज नॉट अ बाइनोमियल ट्री. क्योंकि ये बाइनोमियल ट्री यदि हम सिंपली B3 ले रहे हैं तो दिस मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स, 2 की पावर 3, दिस मीन्स टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर 8 नोड्स. बट इन दिस केस दिस इज नॉट अ binomial 3 of order 3. This is not a binomial 3 of order 2. So this means this is unordered. The roots, the trees are rooted. There is a root, but this is unordered. There is no order. वहां पे क्या होता था कि यदि B3 लेते थे, that is of order 3. Order 3 में number of nodes are exactly equal to 2 की power 3. ठीक है. This means this tree is a collection of two sub tree that are in case of this is order 3 tree, this is a collection of two binomial tree of order 2. तो उन दोनों को हम, one is the leftmost child of other. So simply this is, और अब this satisfy the property of heap, यहाँ 3 है, इसके जो this satisfy the property of min heap. तो जो आपका root node होगा means every children node have a greater or equal value than its root node or its parent node. So this is this also satisfy 21 है, this is 25, also satisfy the property of min heap, but this is unordered. Similarly this is 25, 27, 45, 35. So this means this is also a satisfy the property of min heap, but this is unordered. Here this property means the trees in Fibonacci heap are not constant to be a binomial tree. जो भी trees है, it is not necessary that binomial tree, ये सारी trees binomial, but it satisfy the property of heap, means the trees are heap ordered. In case of binomial trees, some nodes are marked. Some nodes are marked, and that is represented by a double circles. Like as this is a marked node, this is a marked node, this is also a marked node. Similarly, in this case, this is a marked node, and in this case, this is a marked node. Some nodes are marked in case of, so this is a Fibonacci heap consisting 5 heap order tree. So this is a, what is this? This consisting 5 heap order tree. And how many number of nodes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 14 nodes. The dashed line represents indicate the root list. The dashed line represent indicate the root list, and this means this is represented by, in case of Fibonacci heap, each node X contains a pointer Px. Each node X contains a
pointer px to its parent and pointer child x to any one of its children, and pointer each node x, like as each node x contains a pointer px to its parent and pointer child x to any one of its children. So this means each node have a pointer px for its parent, like as this is a parent of these childs, these are the childs, and similarly this is a parent of this child, so these are the childs. So this means every node consisting of pointer px, which indicates the pointer of its parent, and child x to any one of its children, and the children of x are linked together. The children of x are linked together in a circular doubly linked list children are linked together in a circular doubly linked list which we call child list of x. Child list of x. Child list of x means all the children are linked together in a manner of the circular doubly linked list. Here we represent this Fibonacci heap through a doubly circular doubly linked list. So this is a one tree and this is another. All are the roots. The dashed line represents a root to all. This means the root of this tree is connected from this, and means इसके राइट में क्या होगा, ये ट्री होगा, इसके लेफ्ट में क्या होगा, ये ट्री होगा. सिमिलरली दिस इज अनदर रूट, इसके जो राइट में है 8 के राइट में, इसके 8 के राइट में जिसका रूट 3 है, ये सब ट्री होगा, और इसके 3 के लेफ्ट में क्या होगा, 8 होगा. सिमिलरली 3 के लेफ्ट में राइट में क्या होगा, 21 होगा, इसके लेफ्ट में 21 के लेफ्ट में 3 होगा. सिमिलरली दिस 21 के राइट में 24 के लेफ्ट में ये होगा. अब इसके बाद देखिए सिंपली कि 24 के राइट में क्या होगा, तो 24 के राइट में 24, ये इसको आप कुछ दूसरा कर लीजिए, ये भी 24 है, तो दिस इज सपोज करिए दिस इज 25, इसको 25 कर लीजिए. तो 25 के लेफ्ट में क्या होगा, 25 के लेफ्ट में 24 होगा, और इसके बाद जो है मींस ये जो होगा इसके राइट में क्या है, इसके राइट नोड, जो इसका राइट नोड होगा दैट इज द जो ये प्रीवियस स्टार्टिंग नोड ऑफ ट्री. स्टार्टिंग नोड ऑफ ट्री क्या है, 24 है, तो ये होगा. इसके लेफ्ट में क्या होगा, अब 24 के लेफ्ट में, तो 24 के लेफ्ट में क्या होगा, जनरली 24 के लेफ्ट में 5 होगा. तो दिस इज द सर्कुलर वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट. सर्कुलरली दिस इज नोन एज ए सर्कुलरली लिंक लिस्ट. यहाँ पे सर्कुलरली डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट मीन्स एवरी नोड हैड इट्स लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड. तो ये नोड है, इसके लेफ्ट में क्या है, 8 है, 8 के लेफ्ट में क्या है, 24 है, 8 के राइट में क्या है, 3 है, 3 के लेफ्ट में 8 है, 3 के राइट में क्या है, 21 है, 21 के लेफ्ट में 3 है, 21 के राइट में 25 है, 25 के लेफ्ट में 21 है, 25 के राइट में क्या है, फिर से इनिशियल नोड हो जाएगा दैट इज 24, और 24 के जो लेफ्ट में पड़ा है वो क्या पड़ा हुआ है, लास्ट नोड दैट इज 25. सिमिलरली चाइल्ड नोड्स आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. तो अब देखिए 18 है, तो 18 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ऑल द चाइल्ड्स ऑफ एक्स, ऑल द चाइल्ड्स ऑफ नोड 3 आर कनेक्टेड इन अ मैनर ऑफ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. तो दिस इज 18 के
राइट में क्या हो जाएगा 52, 52 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा 18, 18 के 52 के राइट में 38, 38 के लेफ्ट में 52। अब फिर से देखिए दिस वन इज द लास्ट नोड और लास्ट चाइल्ड ऑफ दिस नोड, तो अब ये क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके राइट में क्या हो जाएगा दिस इज, इसके राइट में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा 18 के लेफ्ट में, ओके 18 के लेफ्ट में क्या हो गया आपका 38 हो गया। सिमिलरली इफ सम नोड है बट सिंगल चाइल्ड, तो उसके लेफ्ट में भी वही रहेगा राइट में भी वही रहेगा, तो 39 के लेफ्ट में लाइक 39 के लेफ्ट और 39 का राइट दोनों सेम चीज रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 42 के लेफ्ट में भी 42 है, 42 के राइट में भी 42 है, 35। अब यहाँ पे भी सिमिलरली यही होगा, दिस इज इसके लेफ्ट सॉरी दिस वन इज ए सिंगल चाइल्ड, ये 25 क्या है सिंगल चाइल्ड है, तो 25 सिंगल चाइल्ड है, तो इसके लेफ्ट में भी यही रहेगा और इसके राइट में भी यही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 25 टू चाइल्ड्स हैं, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा राइट में 45, लेफ्ट में 45 27, फिर इसके राइट में 27, 27 के लेफ्ट में 45। सिमिलरली ये सिंगल नोड है, तो सिंगल इसके लेफ्ट में भी यही रहेगा और राइट में भी यही रहेगा, ठीक है। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट, अब देखिए जितने भी हैं चाइल्ड हैं, दिस ऑल दीज आर 18, 52, 38 आर द चाइल्ड ऑफ दिस, तो सिंपली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ जो है चाइल्ड ऑफ दिस, तो एक एरो बना देंगे 18 से, दिस 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 ऑल आर द चाइल्ड्स, दिस इज मींस दिस 3 इज द पेरेंट ऑफ दिस। अब देख नेक्स्ट ये क्या है, दिस 21 इज द पेरेंट ऑफ दिस, तो ये 21 पेरेंट हो गया, एक एरो इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली this and this, next one is the means, अब किसी भी एक को, these are the 18, 52, 38, these are the childs, okay, तो दिस मीन्स किसी भी एक को आप इसका चाइल्ड, इसके लेफ्ट इसके चाइल्ड नोड में किसी भी एक नोड को डालेंगे, जितने भी एक चाइल्ड हैं 18, 52, 38, किसी को भी आर्बिट्री ले सकते हैं। सपोज करिए हमने 52 को डाल दिया, तो इससे हम इसको कनेक्ट कर, सिमिलरली ये है तो ये सिंगल है तो इसी को कनेक्ट करेंगे, डबल होता तो किसी को भी आप कर सकते थे कनेक्ट, ठीक है। सिमिलरली 25 के दो चाइल्ड हैं 27 एंड 45, तो एनी चाइल्ड इज लिंक फ्रॉम 25, किसी भी चाइल्ड को आप लिंक कर सकते हैं लाइक एज दिस, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आप इसको लिंक करेंगे, सिंगल है, दिस इज आल्सो सिंगल एंड दिस इज आल्सो सिंगल, ठीक है। दिस एरो शो दैट 39 इज द चाइल्ड ऑफ 18, ठीक है। दिस एरो शोज दैट 18, 52 एंड 38 जो इधर की तरफ लगा है, दिस मींस दिस शोज दैट 18, 32, 38 आर द childs of parent node 3. Similarly, this arrow indicates that 21 is the parent of 25. Similarly, this 25 is the parent of 27 and 45. And any child node are arbitrarily connected from link from its parent. कोई भी एक चाइल्ड, जैसे 10 चाइल्ड है तो 10 में से कोई भी एक आर्बिट्री चाइल्ड यहाँ, फिर तो ये आपस में सर्कुलरली कनेक्टेड ही हैं। हमें सिर्फ इसका कनेक्शन शो करना है किससे, 3 से, ठीक है। तो 3 से किसी भी एक को कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके थ्रू हम सारे नोड को एक्सेस, 32 से हम 38 एक्सेस करेंगे, 38 से हम 18, तो दिस मींस वी फाइंड ऑल द चाइल्ड्स ऑफ दिस। सिमिलरली हमें इसका चाइल्ड फाइंड करना है, तो ओनली सिंगल चाइल्ड है। यदि मोर देन वन चाइल्ड होते हैं, सपोज दिस वन इज कनेक्टेड, तो इससे हम सर्कुलरली, बिकॉज द लिंक लिस्ट इज सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट, तो हम सारे चाइल्ड को मींस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ आर अलाउड इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलरली डबली लिंक लिस्ट में क्या है कि हम किसी भी नोड से आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज वी नो द लेफ्ट एज वेल एज राइट चाइल्ड ऑफ एवरी नोड, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर वी आर्बिट्री कनेक्ट एनी चाइल्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट, तो एनी किसी भी एक को आर्बिट्री हम लिंक कर देंगे, वेदर वो 32 हो सकता है, 18 हो सकता है, 38 हो सकता है, दिस डिपेंड्स ऑन यू। So this is the circular doubly linked list representation of a Fibonacci heap. Simply all rooted जो रूट हैं, रूटेड ट्री हैं, उनको जो उनके सारे रूट को हम क्या करते हैं, सिंपली एक ट्री लेंगे, उसके
एक नेक्स्ट को हम जो है लेफ्ट राइट में रख देंगे, इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली 8 के राइट में 3 हो गया, 3 के लेफ्ट में ये हो गया। ठीक है, फिर जितने भी चाइल्ड नोड होंगे एवरी नोड के, all are connected in the form of circular doubly linked list, and if some parent have only a single child, तो उसके लेफ्ट में भी वही रहेगा, राइट में भी वही रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज आर्बिट्रली, एनी वन चाइल्ड इज आर्बिट्रली कनेक्टेड फ्रॉम इट्स पेरेंट, और फॉर शोइंग द पेरेंट मींस दिस इज अ पेरेंट, तो यहाँ पे तो दिस इज अ ट्री, तो सिंपली क्या करेंगे, दिस एरो जो होगा वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ होगा, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, तो दिस शोज दैट दिस इज द चाइल्ड ऑफ 3, दिस इज द चाइल्ड ऑफ 52, 52 इज द चाइल्ड ऑफ 3, 38 इज द चाइल्ड ऑफ 3। ओके, अब किसी भी लिंक करना है, इस जो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने बनाया है इसके चाइल्ड की, उसमें से किसी एक नोड को आर्बिट्ररली हम क्या करेंगे, पेरेंट नोड से लिंक कर देंगे। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट circular Fibonacci heap by using a circular doubly linked list. Then there are some properties of Fibonacci heap, and these properties, अब देखिए, एक ये होगा कि min h means the root which have a minimum value in all rooted tree। अब देखिए इसका 24 है, 8 है, इसका क्या है 3 है, रूट इसका 21 है, 25 है। तो किसी भी ट्री में, जैसे इस ट्री की बात करेंगे तो इसके जो सब ट्रीज होंगे उसमें 24 से लेसर वैल्यू नहीं हो सकती। सिमिलरली इसके जो सब ट्रीज होंगे उसमें 28 से लेसर वैल्यू नहीं हो सकती, 3 से लेसर वैल्यू नहीं हो सकती, कोई वैल्यू 3 से लेस नहीं है। इसमें 21 से लेस वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी चाइल्ड की, और 25 से लेस वैल्यू नहीं हो सकती। तो दिस इज अ tree which consisting of 5 heap order tree, Fibonacci heap which consisting 5 heap order tree and 14 nodes। अब इसमें से देखेंगे जो ट्री है heap order tree, उसमें से किसका कौन min है, min means which root have a minimum value, तो that is denoted as a min of h। ठीक है, this is min of h because जितने भी आपके रूटेड ट्री हैं 24, 8, उसमें से जो मिनिमम रूट है वो क्या है 3। So this is represented, means a given Fibonacci heap H here, a given Fibonacci heap H, suppose H is a Fibonacci heap, is accessed by a pointer this is accessed by a pointer min h। तो जब भी हमें फिबोनाची हीप को एक्सेस करना है तो हम कहां से एक्सेसिंग स्टार्ट करेंगे, एक्सेसिंग जो स्टार्ट होगी दैट इज min h। min h मींस द रूट व्हिच हैव वैल्यू मिनिमम वैल्यू। हियर यहाँ पे आप देख रहे हैं द रूट व्हिच हैव मिनिमम वैल्यू, तो min h, तो हम एक्सेसिंग कहां से स्टार्ट करेंगे 3 से। तो देखिए हम 3 से सारा एक्सेस कर सकते हैं। इसके हम लेफ्ट में जाएंगे, 21 पड़ा हुआ है राइट में, फिर इसके राइट में जाएंगे 25 पड़ा हुआ है, 25 के बाद 24 पड़ा हुआ है, 24 के बाद 8 पड़ा हुआ है, ठीक है, 8 के बाद फिर से हम जाएंगे तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो दिस मीन्स कि ये 3 आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी ये 3 आ गया तो यहाँ से मीन्स ऑल रूटेड ट्री आर एक्सेस। तो इस केस में क्या करेंगे, अब ये दिस वन इज द min h। अब इसके जाएंगे कि इसके क्या चाइल्ड हैं, तो यस दिस इज 32, 32 से फिर क्या होगा 38, फिर 18 हम एक्सेस कर लेंगे, फिर 18 के चाइल्ड में जाएंगे 39 एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ 38 में एक्सेस करेंगे तो 42 एक्सेस कर लेंगे। इन दिस वे वी एक्सेस ऑल द नोड्स ऑफ ऑल 14 नोड्स ऑफ द tree one by one, means all 15 nodes। So here a given Fibonacci heap h is accessed by a pointer min h to the root of the, which is a root of the tree containing minimum tree. This is called minimum node of Fibonacci heap. This is also known as minimum node of this is minimum node of Fibonacci heap
If Fibonacci heap is empty, then what is the value of min h? So min h is null in case of if Fibonacci heap, if Fibonacci heap fh is null or empty, is empty, then क्या होगी? min h की वैल्यू क्या होगी? min h is equal to null. Min h is equal to null. So here the other properties are b in case of Fibonacci heap, b obtain a potential function. Potential function. This is potential. Potential function. This analyze the performance of Fibonacci heap operation. Analyze of Fibonacci heap operations. Here for computing the potential function of a Fibonacci heap, here we know the th, that is the number of trees in root list of h. This is the number of trees in the root list of Fibonacci heap. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन द रूट लिस्ट ऑफ Fibonacci heap. तो टीएच की वैल्यू इस केस में क्या होगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रीज इन द रूट लिस्ट ऑफ Fibonacci heap. यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपली हाउ मेनी ट्रीज 1 2 3 4 एंड 5. तो टीएच की वैल्यू क्या होगी? टीएच इज द 5. देन व्हाट इज दिस? एमएच. एमएच इज द नंबर ऑफ मार्क नोड इन Fibonacci heap. Number of marked node in Fibonacci heap number of marked node in Fibonacci heap min h. We already discussed about min h. This point to root of tree containing min key points to root of tree minimum this points to root of tree containing minimum key value. So these are the some known things during the analysis of analyze the performance of Fibonacci heap operation, and that is denoted by, for analyzing the analyzing the operations of Fibonacci heap, we analyze it through potential function, and potential function is denoted, potential function of Fibonacci heap is given by phi of h. Phi of h, that is equal to t of h. T of h is the number of trees in the root list of Fibonacci heap plus 2 multiplied by EMH. 2 multiplied by EMH. What is EMH? EMH is the number of marks node in Fibonacci heap. So this potential function is used to analyze the performance of Fibonacci heap. So operation. So in this case, in this tree, how many number of what is the potential function of this Fibonacci heap? So first find how many number of trees in its root list. तो 1 2 3 4 5. तो th की वैल्यू आपकी 5 होगी. नेक्स्ट फाइंड द how many number of marked node in Fibonacci heap. So here we see that this in this tree how many marked node? 1 2 3 4 1 2 3. This is also marked node 4 and this is also node. Total number of marked node are also 5. या हम कह सकते हैं एक और मार्क नोड है 6 है, या इसको भी हम मार्क नोड कह देते हैं. दिस इज आल्सो मार्क नोड. तो दिस फंक्शन क्या हो जाएगा?
the potential function of this Fibonacci heap or above a Fibonacci heap phi h is equal to क्या हो जाएगा, th की वैल्यू क्या है 5 नंबर ऑफ ट्रीज प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो दिस इज इक्वल टू 6 multiplied by 2, that is 12 plus 5 17. So this 17 is the potential function. Then in this way means potential function is used to analyze the performance of Fibonacci heap operations. Then some property of some other properties of Fibonacci heap is, unlike the binomial heap, can have many trees of same degree. देखिए, unlike the binomial trees can have, means Fibonacci heap can have many tree of same degree. बहुत सारी ट्री हो सकती हैं जिसकी डिग्री सेम है. जैसे यहाँ पे नोड है, उसमें क्या है, सिंपली जो आपका जो नोड है वो डिफरेंट डिग्री के होते हैं. इसमें मेनी ट्री ऑफ सेम डिग्री हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0. जैसे आप वहां पे बनाते थे तो क्या करते थे, आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है बाइनोमियल हीप. हियर यहाँ पे ये बाइनोमियल हीप कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज ऑफ 13 नोड्स और 24 नोड. ठीक है, अब ये बाइनोमियल हीप यदि कंस्ट्रक्ट करना है, बाइनोमियल हीप फ्रॉम 24 नोड्स, 24 नोड्स. तो अब देखिए, जब 24 नोड्स का बाइनोमियल ट्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या होगा 24 का बाइनोमियल. तो अब इसके देखेंगे कि नियर अबाउट 2 की पावर क्या है, तो 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16. 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32. तो अब देखिए, सबसे पहले जो लॉग ऑफ n की वैल्यू है, लॉग ऑफ 24 का जो फ्लोर लेंगे हम, ठीक है, ये क्या आएगा, दैट इज 4. तो अब जो पहला ट्री होगा आपका, तो क्या होगा, इसमें कितने नोड होंगे, 2 की पावर 4 नोड होंगे. अब देखिए 2 की पावर 4 मीन 16 नोड्स. अब 16 माइनस 24 माइनस 16 कितना आएगा आपका, 8 नोड बचा. तो नेक्स्ट ट्री दैट इज 8 नोड. अब यहाँ पे 8 नोड हो जाएंगे. तो व्हाट इज द डिग्री, अभी ये दो ट्री, दिस कंसिस्टिंग ऑफ 2 बाइनोमियल ट्री, one is of order 4 and another is of order 3. This is equal to 2 की पावर 3, another is of order 3. तो इसमें कितने नोड होंगे, 2 की पावर 4 मीन 16. इसमें कितने होंगे, 2 की पावर 3. इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी. अब सपोज करिए, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ 26 और 27. इसकी वैल्यू यहाँ पे हम करते हैं बाइनोमियल हीप फ्रॉम 27 नोड. अब देखिए यहाँ पे 27 नोड, यहाँ पे क्या है, 27 नोड्स मीन्स द ट्रीज आर, दिस इज लॉग ऑफ 27 का फ्लोर लेंगे यदि आप, तो क्या आएगा, दैट इज आल्सो 4. तो जो मैक्सिमम रूटेड ट्री होगी इसमें, वो क्या होगी, दैट इज ऑफ 4 नोड, सॉरी 4 रूट की जो डिग्री होगी दैट इज ऑफ 4. और इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, दिस इज ऑफ ऑर्डर 4 बाइनोमियल ट्री. तो ऑर्डर 4 बाइनोमियल ट्री मीन्स दिस इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 बाइनोमियल ट्री ईच ऑफ ऑर्डर 3 and 1 is the leftmost child of other. तो अब देखिए इस तरीके से कितना होगा, तो 2 की पावर 4 नोट हो गए. अब कितना बचा, 2 की पावर 24, 2 की पावर 4 मीन्स 16. अब 11 बचा, 11 मीन्स इसमें क्या आएगा, 11 मीन्स 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3. नेक्स्ट, ठीक है, 3 बचा, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर, फिर क्या होगा, 2 की पावर 1 मीन्स 2 आ जाएगा, दिस इज 2 की पावर 0. ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0. तो अब जो भी इसमें होंगे ट्री, एक ट्री आपका क्या होगा, 2 की पावर 0 मीन्स 1 नोड का होगा. ठीक है, ये आपका 1 नोड दैट इज ऑफ ऑर्डर ट्री. ठीक है, दिस इज, जो दूसरा होगा वो 2 नोड का होगा. तीसरा जो ट्री होगा वो 2 की पावर 3 मीन्स 8 नोड का होगा. जो चौथा ट्री होगा वो 4 नोड, 2 की पावर 4 मीन्स 16 नोड का होगा. एंड ऑल आर ऑर्डर ट्री, all are a binomial tree. Binomial tree is order tree. ठीक है, and each binomial tree satisfy the property of min heap. Property of means that is the trees are also a heap ordered. ठीक है, जो उसका रूट में होगा वो क्या होगा. तो अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इस ट्री की बात करेंगे तो इसका कितना है, इसका डिग्री क्या है, इसके रूट की डिग्री क्या है, 1 है. इसके रूट की डिग्री क्या है, ये 2 का होगा, तो 2 इज लाइक एज ए दिस. ठीक है, तो इसके रीट की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई. तो
यदि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर सिमिलरली यदि इसकी बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी, रूट की 3 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी। तो जितने भी ट्रीज हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट डिग्री, ईच when we construct a binomial heap, all the binomial trees appear during construction of a binomial heap. The trees are of different degree. Each tree have a different degree of its root. But in case क्या होगा, binomial in case Fibonacci heap, unlike a binomial heap, Fibonacci heap can have many trees of the same degree. यहाँ पे देख लीजिए, आप सिंपल देख सकते हैं। इस ट्री में देखिए, यदि इसकी डिग्री की बात करेंगे तो क्या है, इसकी डिग्री की बात करेंगे तो 0 है, इसकी डिग्री की बात करेंगे 0 है, बट उसमें 2 डिग्री 0 नहीं हो सकती है। यदि हम फिबोनाची हीप की बात करेंगे तो एक की ही डिग्री 0 होगी, 2 की 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ फिबोनाची हीप, मींस बाइनोमियल हीप कैन हैव मेनी ट्रीज ऑफ सेम डिग्री। tree does not necessarily containing exactly 2 की पावर k nodes। ठीक है, जैसे इसमें है तो tree does not necessarily containing exactly 2 की पावर k nodes। तो exactly जरूरी नहीं है कि हर ट्री में यदि वो are 2 की पावर k nodes, it is not necessary that every tree consisting 2 की पावर k nodes। बट उसमें क्या है, सिंपली यदि फिबोनाची हीप की बात करेंगे तो जितनी भी ट्री हैं, यदि वो ऑर्डर 1 का है तो 2 की पावर 1 नोड्स होंगे उसमें, ऑर्डर 2 का है तो 2 की पावर 2 नोड्स मींस 4 नोड होंगे, ऑर्डर 3 का है तो 2 की पावर 3 मींस 8 नोड्स होंगे। बट इसमें देखिए ये क्या है, सिंपली दिस इज एन अनऑर्डर्ड ट्री, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट मींस द ट्री कंसिस्टिंग ऑफ 2 की पावर k, 2 की एग्जैक्ट पावर में हो नंबर ऑफ नोड्स, इट इज नॉट नेसेसरी। हो भी सकते हैं, यदि है भी तब भी वो बाइनोमियल ट्री होगा, नहीं है तब भी बाइनोमियल ट्री होगा, सॉरी बाइनोमियल कह रहे हैं, फिबोनाची ट्री होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि दिस रूटेड बट अनऑर्डर्ड। कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्री आपका ऑर्डर में, यदि ऑर्डर में है मींस दिस इज अ बाइनोमियल ट्री, तो इट इज आल्सो अ फिबोनाची हीप। नहीं है तब भी फिबोनाची हीप होगा। इफ द ट्रीज आर अनऑर्डर्ड, that is also a Fibonacci heap, but each tree satisfies means each tree is of heap order. So this is the another difference, means the trees does not necessarily containing exactly 2 की power k nodes in case of Fibonacci heap. The next property is root and childrens are circularly doubly linked list। यहाँ पे देखिए, roots are represented through a circularly doubly linked, its children of every node are also represented through circularly doubly linked list। Here trees are rooted but unordered, we already discussed about this, means that in case of Fibonacci heap the trees are rooted but unordered and each node have its degree, the number of children of node x has degree x। ठीक है, each node have its degree and the number of children of node x has degree x। तो सिंपली यहाँ पे नोड इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें कितने हैं 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इसकी डिग्री क्या है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी, 0 है तो 1 0 हो जाएगी, इसके 1 है तो 1 हो जाएगी। सिमिलरली वी फाइंड द डिग्री ऑफ ईच नोड। So in case of another property is of Fibonacci heap, in case of Fibonacci heap, the nodes are marked either true or false। ठीक है, some nodes are marked, but when we create a new nodes or we insert a new nodes in a Fibonacci heap, तो this is unmarked, उसको हम mark नहीं करेंगे। When we insert or we create a new node in case of Fibonacci heap, तो सम नोड्स जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस नोड इज मार्क, दिस नोड इज मार्क, दिस इज नोड इज मार्क, दिस नोड इज मार्क। व्हाई सम नोड्स आर मार्क, बिकॉज these nodes mark nodes are appear during the computation of potential function which analyze the performance of Fibonacci heap। So these are the some properties of Fibonacci heap, and next we start discussion of a string matching algorithm। If there is any confusion in Fibonacci heap, then please ask।
and the difference is clear between Fibonacci heap and binomial heap. Next is string matching algorithm. String matching algorithm. So generally we discuss about the there are two strings are given. ठीक है, string one, इसको हम ये भी कह सकते हैं string one that is a text. ठीक है, string two that is pattern. These are also known as string matching or pattern matching algorithm. Simply to text, there are two strings are given in the form of text and patterns. Be matched whether pattern is found in a text or not. If is it found, then we find the location in which pattern is found. like ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. ठीक है, हमने सिंपली लिखा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. दिस इज स्ट्रिंग फर्स्ट और दिस इज नोन एज टेक्स्ट. तो जो टेक्स्ट है आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. अब यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, सर्च करना है सिंपली सपोज करिए पैटर्न आपको दिया हुआ है स्ट्रिंग 2 दैट इज अ पैटर्न. तो आपको स्ट्रिंग 2 किस में सर्च करना है, स्ट्रिंग 1 में दैट इज नोन एज ए टेक्स्ट. स्ट्रिंग 2 इज पैटर्न. पैटर्न आपको फाइंड करना है, पैटर्न में दिया हुआ है कौन सा पैटर्न फाइंड करना है, दिस इज कंप्यूटर. ठीक है, आपको फाइंड करना है कि क्या कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्यूटर स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है किसमें, टेक्स्ट में. यदि कर रही है तो उसका लोकेशन आपको फाउंड करना है कि किस लोकेशन से वो स्टार्ट है. ठीक है, तो हियर वी फाउंड दैट व्हाट इज द लोकेशन. तो लोकेशन यदि हम लोकेशन इसको काउंट करें तो दिस इज 0, या यदि 1 से हम लोकेशन काउंटिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गैप का सपोज करिए एक स्पेस है तो दिस इज 11 12 13 14 एंड 15. तो यहाँ जैसे 15 से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो हमें 15 से लेके हमें ये जो है कंप्यूटर मिल रहा है. तो दिस मींस दिस द लोकेशन दिस इज 15. और इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स हम बताएंगे कि कहाँ से हमारा ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, वो जो कि एग्जैक्टली मैच करेगा. ठीक है, अब हो सकता है यहाँ कंप्यूटर की जगह OR कर दें TOR, तो दिस नॉट एग्जैक्टली मैचिंग, तो वो आगे बढ़ जाएगा सर्चिंग करने के लिए. जहां आपको कंप्यूटर मिलेगा वो फाइंड करेगा, नहीं है तो दिस मींस द स्ट्रिंग इज नॉट मैच्ड. तो सिंपली हियर बी मैच द पैटर्न इन द गिवन टेक्स्ट. टेक्स्ट इज गिवन, पैटर्न इज गिवन. Be match the pattern whether it is found in the given text or not. If it is found, we find its index or location of patterns, meaning in which location pattern is start. So this is the main objective of a string matching algorithms. So there are different string matching algorithms. Various applications of string matching algorithms. So applications of string matching algorithm: search keyword in a file, searching in engines like as a Yahoo, Google. So string matching algorithms are also involved during searching of any words or any string in some engines like Yahoo, Google, etc. Then database searching in a database means database searching. Searching particular pattern in DNA sequence. So these are the some applications of pattern matching algorithm. Searching keywords in any file, एक word file है या notepad file है, उसमें कोई आपको
कीवर्ड सर्च करना है तो हेयर वी यूज अ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। डिफरेंट इंजन्स में हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं तो दिस इज लाइक एज याहू, गूगल, हेयर वी यूज अ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। डेटाबेस में हम सर्चिंग करते हैं कि हम बीएचयू का डेटाबेस है या समथिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है, उसमें हमें कुछ सर्च करना है तो वी यूज अ स्ट्रिंग मैचिंग और पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। देन सर्चिंग पर्टिकुलर पैटर्न इन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस है उसमें आपको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस सर्च करना है तो सिंपली हेयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ string matching or pattern matching algorithm. So there are several string or pattern matching algorithm types. Next we discuss types of pattern matching algorithms. Pattern or string, that is also known as string matching algorithm. So there are three known algorithms which are generally used for string or pattern matching. That is Naive string matching algorithm. First one is Naive string matching algorithm. ठीक है, it is also known as a brute force algorithm. Brute force algo for string matching. ठीक है, brute force algorithm for, so this naive string matching algorithm generally adopt the concept of brute force approach for matching the pattern in a string. Second one is the Knuth-Morris-Pratt algorithms, KNP, that is known in short, this is known as a KNP algorithm. Knuth-Morris-Pratt KMP algorithm for string matching. And third is known as a Robin-Karp algorithm. Robin-Karp algorithm. So we discuss these algorithms in the next class. Means naive algorithms, what is KMP algorithms. This is just a modified version of a naive string algorithms. During for minimize the complexity, we use these algorithms, and the concept of Robin-Karp algorithm is something different. So we discuss these concept, means concept of naive string matching algorithm, Knuth-Morris-Pratt KMP algorithms, Robin-Karp algorithms. We will discuss in the next class. Any query regarding today's class, then please ask.